visible to everyone. Okay, so see, at the end you have to stick with this table only. This is one of the important tool, and using this results only you can find the Laplace transform of the other complicated functions. Okay, क्योंकि ये functions तो आपको नहीं आने वाले, ये इन function का use करके आपको Laplace transform calculate करना है in other cases. Okay, so again I will repeat this part. Okay, so remember the Laplace transform of 1 is 1 upon s. Okay, Laplace transform of e raised to at is 1 upon s minus a. Okay, means the exponential function. Next is Laplace transform of sine of at is a upon s square plus a square. Laplace transform of cos of at is s upon s square plus a square. Sine hyperbolic at is a upon s square minus a square. Cos hyperbolic at is s upon s square minus a square, and then last is t raised to n. Okay, in that case the Laplace transform of t raised to n is gamma of n plus 1 upon s raised to n plus 1. Now using this in the next part you have to learn some properties of the Laplace transform. Okay, just 1 minute. So our next, just 1 minute. Okay. So now our next target is what? Okay, we have to learn some properties of this Laplace transform. So next topic is properties. Okay, properties of the Laplace transform. Okay, so the first property is a linear property or linearity property, which is already over. Okay, linearity property means what? You can separate Laplace transform, okay, with respect to addition, okay, or with respect to subtraction. Okay, also you can take a constant, okay, outside to the Laplace transform. So that property is called as linearity property. That is our first property. Okay, second property is first shifting property. First shifting property. Maybe this is repetition for C division. Okay, so what is the first shifting property? If we have, I will quickly explain this property. If we have Laplace transform of any given function, which is equal to say f of s, okay, then the Laplace transform of e raised to at into f of t is actually f of s minus a. So this is the property. Means what? अगर आपके पास f of t का Laplace transform है, so using that Laplace transform, you can easily find a Laplace transform of that function multiply by exponential. या simply अगर किसी भी function को e raised to at से multiply हो रहा है, तो आप बस क्या करो, उस other function का Laplace transform calculate करो. आपको यहाँ पे बस f of t का Laplace transform calculate करना है, and in that Laplace transform, okay, and in this Laplace transform just replace s by s minus a. You will get that result. Okay, I will take one example on this. See, for a division I will take these examples on this property in next lecture. अभी बस मैं quickly introduce करके आगे जाने वाला हूँ, but yes फिर से आपके डिवीजन पे भी रिपीट होगा. Okay, so for example, but it is not that much difficult. I will take one example. Okay, for example, find, ऐसे क्वेश्चन आता है, find Laplace transform of e raised to at cos 2t. ठीक है, आपको इस केस में Laplace ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है. ओके, आपको तो क्लियरली पता है, आपके पास जितने भी फंक्शंस है, ओके, आपके पास 1 का Laplace ट्रांसफॉर्म है. नेक्स्ट इज व्हाट? e raised to at का Laplace ट्रांसफॉर्म है. नेक्स्ट इज व्हाट? साइन फंक्शन का साइन ऑफ at, cos ऑफ at, साइन हाइपरबोलिक ऑफ at, है ना, cos हाइपरबोलिक ऑफ at, एंड एट देन t raised to n. आपके पास बस इन्हीं फंक्शन का ही Laplace ट्रांसफॉर्म है. ओके, बट यहाँ पे जो फंक्शन आपके पास आ रहा है विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इन विच वन फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल. ठीक है, तो डायरेक्टली आपके पास कोई रिजल्ट नहीं है Laplace ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए, इसलिए आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी का यूज करना है.
ओके तो इस टॉपिक में पहले तो आपको यह आइडेंटिफाई होना चाहिए कि वो क्वेश्चन कौन से प्रॉपर्टी के ऊपर आ रहा है। ओके तो अगर किसी भी क्वेश्चन में e रेस टू 80 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन्स व्हाट, दैट क्वेश्चन इज ऑन द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अगर एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको क्या याद रखना है, दैट इज द क्वेश्चन ऑन फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। एंड व्हाट इज द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी? अगर किसी केस में एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे अब देखो आपको करना क्या है, जो आपका सेकंड फंक्शन है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करो। सो इन सोल्यूशन, in this case in solution, just calculate the Laplace transform of the second function. Okay, that is the Laplace transform of cos of at, that is cos of 2t. Okay, what is the Laplace transform of cos of 2t? ये आपने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, आपके पास इन सारे फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। cos of at का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है? आई थिंक इट इज s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, बट a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, so it become 4. So this is the Laplace transform of cos of at. Okay, and now using or by first shifting property, the Laplace transform of this function multiplied by exponential means e raised to at multiplied by cos of 2t is actually, करना क्या आपको, बस करना क्या है यहाँ पे, just replace s by s minus a, but a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, so just replace s by s minus 2, so that gives you s minus 2 upon s minus 2 whole square plus 4 हो गया। Okay, so this is your first shifting property. Okay, specially division A students. Okay, so say this, अगर किसी फंक्शन में e raised to 80 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा था, तो आपको बस करना क्या है, हाउ यू रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी, आपको बस करना क्या है, जो आपका सेकंड फंक्शन है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करो। उस लैप्लास ट्रांसफॉर्म में s की जगह पे, क्योंकि लैप्लास ट्रांसफॉर्म f ऑफ s आने वाला है ना, f ऑफ t का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो f ऑफ s आने वाला है, तो उसमें आपको बस करना क्या है, जस्ट रिप्लेस s बाय s माइनस a, यू विल गेट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to 80 into f of t, एंड यू कैन रेफर दिस वन एग्जांपल। ओके, तो और भी इसमें क्वेश्चंस है। सर यस बोलो सर, वो अभी का एग्जांपल में वो s माइनस चाहिए ना सर, आपने s माइनस 2 लिया, हाँ e रेज़ टू 80 लिखा है, वो हाँ s माइनस चाहिए ना, s e रेज़ टू 80 में, ओके हाँ सो करेक्ट, ठीक है वो, ओके सर, हाँ ये ठीक है हाँ। सो हियर जस्ट कंसिडर s माइनस a। ओके, मैंने वो कॉस का ही लिखा ना यहाँ पे, जस्ट 1 मिनट, लेट मी करेक्ट इट, s माइनस a, so this will be s minus a. It depend on the coefficient of e raised to 80. It depend on the coefficient of e raised to 80. अगर मैं यहाँ पे e raised to 2t लिखता हूँ तो जो भी कैलकुलेशन किया था वो करेक्ट है, ठीक है। We'll take one more example. For example, find Laplace transform of, रैंडमली लेता हूँ मैं, e raised to minus t into sin square t, ठीक है। अभी इससे और भी क्लियर होगा। So question 2 is like this, find the Laplace transform of e raised to minus t sin square t। तो यहाँ पे भी आप देखो एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। सो हियर इन दिस केस यू हैव टू यूज दी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो आपको पहले करना क्या है, जो आपका ऑर्डर फंक्शन है उसका आप लैप्लास कैलकुलेट करो, मीन्स फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर टी, करेक्ट। हाउ यू कैलकुलेट दिस लैप्लास ट्रांसफॉर्म, एनीवन, हाउ यू फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर टी। उसके लिए आप, क्योंकि आपके पास साइन स्क्वायर के लिए कोई भी रिजल्ट नहीं है, वी डोंट हैव एनी स्टैंडर्ड रिजल्ट फॉर साइन स्क्वायर टी, देन क्या करना होगा, ये आपको मैंने इसलिए प्रीलिमिनरीज में एक्सप्लेन करके रखा था कि अगर साइन स्क्वायर आता तो किससे रिप्लेस करना है, कॉस स्क्वायर आता तो किससे रिप्लेस करना है, साइन क्यूब आता है तो किससे रिप्लेस करना है, कॉस क्यूब आता है तो किससे रिप्लेस करना है, नेक्स्ट इज व्हाट, साइन ए कॉस भी आता है तो क्या चेंजेस करने हैं। सो दिस ऑल रिजल्ट्स आर ऑलरेडी देयर इन योर प्रीलिमिनरीज, है ना। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड की थी, ठीक है। तो इन सारे रिजल्ट्स का आपको यूज करना है ना। साइन स्क्वायर आता तो क्या चेंज करना है, कॉस स्क्वायर आता तो क्या चेंज करना है, साइन क्यूब आता है तो क्या चेंज करना है, कॉस क्यूब आता है तो क्या चेंज करना है, ओके। साइन ए कॉस भी अगर आता है तो क्या चेंजेस करने हैं, ओके। सो यूजिंग द सिंप्लीफिकेशन ऑफ साइन स्क्वायर टी विच इज 1 माइनस कॉस 2t बाय 2, you will get this, okay. But using the linearity property of Laplace transform, we know that 1/2 is a constant, so you can take that 1/2 outside to your Laplace transform.
Also, using the same property of linearity, you can separate this Laplace transform with respect to this subtraction. So this can be written as Laplace transform of 1 minus Laplace transform of cos of 2t. Correct? And now just use the standard result. ये सारी चीज़ आपके पास already available है. Okay. So the Laplace transform of 1 is 1 upon s. And next is what? The Laplace transform of, just 1 minute. Okay. Next is what? The Laplace transform of cos of 2t is, I think, s upon s square plus a square is 4. Okay. हाँ, तो ये हो गया आपका Laplace transform of second function. Okay. Now what is your second shifting property? Sorry, first shifting property. So by first shifting property, okay, what is this property? मैं फिर से रिजल्ट लिख रहा हूँ. प्रॉपर्टी क्या है बेसिकली आपकी? द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to at into a function f of t is actually equal to f of s minus a, okay, where Laplace transform of f of t is f of s. या इसका सिंपल मीनिंग क्या है? आप बस f of t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करो और उसमें s को रिप्लेस करो बाय s minus a, where this a is actually the coefficient of t in the exponential. बस e का e raised to t में t का कोएफिशिएंट देखना है. दैट विल बी योर a. सो इन दिस केस, इस पर्टिकुलर एग्जाम में a की वैल्यू क्या है? व्हाट इज योर a? e raised to minus t में a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? a इक्वल टू -1. तो आपको किससे रिप्लेस करना होगा? आपको किससे रिप्लेस करना होगा? रिप्लेस s बाय व्हाट? s minus a. बट a की वैल्यू क्या है ऑलरेडी? -1. सो इट बिकम s plus 1. So just replace s by s plus 1, you will get the value of e raised to minus t sin square t. Okay. So in next step, the Laplace transform of e raised to minus t sin square t is equal to, आपको करना क्या है? s को रिप्लेस करो बाय s plus 1. Okay. क्योंकि रिजल्ट आपका क्या है? s minus a से रिप्लेस करना है, बट यहाँ पे a minus 1 है. So it become 1 by 2 in bracket 1 upon s plus 1, okay, minus s plus 1 upon s plus 1 whole square plus 4. ठीक है? Yes. Okay, now is it clear? Is it clear or not? Especially a division, c division में यह हो चुका है. Okay, मुझे एक्चुअली नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेनी है. Anyone from a division, is it clear or not, or still you want me to solve some more examples on this? एट दैट आपको ज्यादातर कॉम्बिनेशन में आता है, ऐसा कोई सेपरेट मतलब इतना ट्रिवियल क्वेश्चन भी आपको नहीं आता. ओके. अभी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आने वाली है ना, मतलब एक 2-3 प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन होकर आपको एग्जांपल आने वाला है एग्जाम में. तो आप देखो कि आपको इसलिए ये सारे प्रॉपर्टीज आपको याद रखने. ओके. इज दिस क्लियर और नॉट? एनीवन फ्रॉम द ए डिवीजन? इज दिस प्रॉपर्टी क्लियर? जस्ट रिप्लाई मी क्विकली. बोलो जल्दी. यस सर. हाँ. ओके. ओके. सिंपली e raised to at से अगर फंक्शन को मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेकंड फंक्शन का लैप्लास कैलकुलेट करो, उसमें s को रिप्लेस करो बाय s माइनस से. इतना ही है. ठीक है. वेयर a इज द कोएफिशिएंट ऑफ t इन द एक्सपोनेंशियल. ओके. एंड नाउ we'll see the second property. So property number 3 actually. First is linearity. Okay, that is over for all division. Second is first shifting property, जो अभी मैंने आपको explain की. Okay. Now third is second shifting property. Now please be focused here. Second shifting property. Okay. तो इसमें basically क्या है? If Laplace transform of f of t is say f of s, आपके पास f of t का Laplace transform है, and if I consider one function like say g of t which is defined as it takes value, let me check again, it takes value 0 when t is less than a, and it takes value f of t minus a where t is greater equal a. Okay. So actually this g of t is defined for this a. Okay. Or you can see or what is the meaning or what is the relation between this g of t and f of t. इन दोनों में basically क्या relation है, मैं आपको दिखाता हूँ
ग्राफिकली, तब आपको ये समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपका एफ ऑफ टी है, ठीक है, ये अगर आपका एफ ऑफ टी है, जी ऑफ टी मैंने कैसे डिफाइन किया है, आई जस्ट शिफ्ट दिस एफ ऑफ टी ओके एट अ डिस्टेंस एक्स इज इक्वल टू ए। मतलब आपका जी ऑफ टी बेसिकली क्या आने वाला है, सेम फंक्शन होगा, ऐसे ही जाएगा वो, बट वो एक्स इज इक्वल टू ए डिस्टेंस से जाएगा, ठीक है। सो दिस इज योर जी ऑफ टी। सो एट द एंड आप एफ ऑफ टी का ही लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर रहे हो, बट शिफ्ट करके, मतलब फंक्शन वही रखा है मैंने, ग्राफ वही रखा है, बस मैंने शिफ्ट किया, ठीक है। और शिफ्ट करते समय इस फॉर्म में मैंने डिफाइन किया, ओके। नाउ इट टेक्स वैल्यू जीरो व्हेन दैट टी इज लेस देन ए, इन सारे पॉइंट्स के लिए वैल्यू वो जीरो ले रहा है, एंड फॉर टी इज ग्रेटर इक्वल ए दैट फंक्शन विल टेक दिस वैल्यू, ठीक है, ओके। And इस केस में if a function or if g of t is defined in this way, okay, remember this form f of t minus a के फॉर्म में वो डिफाइन हो रहा है, where this t is greater equal a, ठीक है। So in this case then result actually क्या है, then the Laplace transform of this g of t is equal to, okay, e raised to minus as into f of s। आपको बस करना क्या है, e raised to minus as से एफ ऑफ टी का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है उसको मल्टीप्लाई करना है, ओके। सो विल टेक सम एग्जांपल्स ऑन दिस, इट्स ऑलरेडी देयर इन योर पीडीएफ आल्सो, ओके। ये फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते, फाइंड क्वेश्चन 1, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी वेयर दिस जी ऑफ टी इज डिफाइंड एज it takes value 0 when your t is less than 2 pi by 3, it takes value cos of t minus 2 pi by 3, so it takes value cos of t minus 2 pi by 3. Let me take this on next line. Cos of t minus 2 pi by 3 when t is greater or equal 2 pi by 3, okay. So you can see this function is very similar to your original g of t। अभी आप देखो, यह आपका g of t था, okay, it takes value 0 when t is less than a, so if you compare these two function तो तब आपको समझ में क्या आ जाएगा, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a is equal to 2 pi by 3, so when a is less than 2 pi by when t is less than 2 pi by 3 it takes value 0, and f of t minus a की वैल्यू क्या है, f of t minus a की वैल्यू क्या है, cos of t minus 2 pi by 3, ओके। सो दिस जी ऑफ टी इज सिमिलर टू दिस जी ऑफ टी, क्योंकि यह आपको आइडेंटिफाई करना है, यह ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं होगा, है ना। जैसे कि ये डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका क्वेश्चन है, सॉल्व दिस और फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस जी ऑफ टी, तो ये आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि यहाँ पे जो जी ऑफ टी डिफाइन हो रहा है विच इज सिमिलर टू दी सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, है ना, जैसे सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में डिफाइन हुआ था। तो इस केस में आपको करना क्या है, आपको यहाँ से एफ ऑफ टी कैलकुलेट करना है, ओके, एफ ऑफ टी कैलकुलेट करना है, फिर उसका लैप्लास कैलकुलेट करना है, वो हो जाएगा आपका एफ ऑफ एस, और फिर उस एफ ऑफ एस को आपको बस e रेज़ टू माइनस ए से मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो ये सब कुछ कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ, ओके। सो नाउ इन सॉल्यूशन, ठीक है, सो बाय सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ओके। सो ऑब्वियसली आपका एक क्वेश्चन होगा कि हाउ यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स ऑन द सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो उसके लिए बस आपको ये जी ऑफ टी याद रखना है, ठीक है। जी ऑफ टी का फॉर्म याद रखो, इट टेक्स वैल्यू 0 व्हेन t इज लेस देन a, इट टेक्स वैल्यू f of t minus a व्हेन t इज ग्रेटर इक्वल a, सो इट इज सिमिलर टू दिस, है ना। a की वैल्यू 2 pi by 3 और ये जो फंक्शन यहाँ पे डिफाइन हो रहा है वो t माइनस a के फॉर्म में डिफाइन हो रहा है, ठीक है। तो इससे आपको वो क्लिक हो जाएगा। देन द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g of t इज इक्वल टू e raised to minus as into f of s, where f of s का मीनिंग क्या होता है, ऑलवेज रिमेंबर कैपिटल F मीन्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्मॉल f, कैपिटल F मीन्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्मॉल f, ओके। सो नाउ इफ आई कंपेयर this given g of t with our standard g of t, you will get a is equal to, so here we have a is equal to 2 pi by 3, correct, and f of t minus a is equal to cos of t minus 2 pi by 3, बस मैंने कंपेयर करके लिखा है, ठीक है। बट आपको मैंने पहले ही बोला है, मुझे एक्चुअली यहाँ पे क्या चाहिए, हियर आई वांट द वैल्यू ऑफ f of t,
क्योंकि जैसे ही मेरे पास एफ ऑफ टी आ जाएगा उसके बाद ही मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकता हूँ. सो कैन एनीवन टेल मी इफ एफ ऑफ टी माइनस ए, बट ए की वैल्यू आपको पता ही है तो मैं यहाँ पे लिखते समय यही लिख लेता हूँ 2π/3. ओके, या ए में भी रखते हो तो भी चलेगा कोई. ओके, सो इफ यू कंपेयर दिस एफ ऑफ t minus 2π/3 is this. Okay, so can anyone tell me what is value of f of t from this? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? ये आपका क्या है, ये आपका t minus 2π/3 का फंक्शन है. सो दिस इज योर f of t minus 2π/3. मुझे चाहिए f of t. दिस इज योर f of t minus 2π/3. ये जो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है दिस इज योर f of t minus 2π/3, बट आई वॉन्ट f of t. सो व्हाट इज दैट f of t? क्या होगा? यस, cos t. इसमें कुछ हाई लेवल का मैथमेटिक्स नहीं है क्योंकि t माइनस एफ ऑफ टी माइनस 2π/3 cos ऑफ t माइनस 2π/3. तो अगर आप इस पूरे टर्म को t से रिप्लेस करते हो तो आपको आंसर क्या मिलेगा? इक्वल टू cos t. दैट इज द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड योर एफ ऑफ टी. तो इस केस में आपका एफ ऑफ टी क्या होगा? एफ ऑफ टी क्या होगा? cos t. ओके, तो ये याद रखो, t माइनस ए की जगह पे बस t रख दो, आपको ऑटोमेटिक आपका एफ ऑफ टी मिल जाएगा. Okay, and now calculate the Laplace transform of f of t. So the Laplace transform of f of t is equal to cos में s ऊपर आता है तो s upon s square plus 1 square because a is 1. ठीक है, ये हो गया आपका s का Laplace transform. Now by the second shifting property the Laplace transform of g of t, जिसका एक्चुअली आपको कैलकुलेट करना है, वो क्या आने वाला है ना? इस g of t का Laplace transform क्या होगा? e raised to minus as multiply by f of s, and now this is your f of s जो आपने f का कैलकुलेट किया था. सो योर फाइनल आंसर इज e raised to minus as multiply by s upon s square plus 1. Okay, so in this way we have to solve the examples on second shifting property. ठीक है, मैं हर एक प्रॉपर्टी के ऊपर हार्डली 1 और 2 एग्जाम्पल लेने वाला क्योंकि एट द एंड आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन याद रखना है. मतलब जितने प्रॉपर्टी में लेने वाला हूँ ना उनका कॉम्बिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सिंगल प्रॉपर्टी के ऊपर रेयरली क्वेश्चन आते हैं. मतलब ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड आने के चांसेस ज़्यादा नहीं है, आपको कॉम्बिनेशन में आएगा. दिखाता हूँ मैं आपको आगे जाके. सो विल टेक वन मोर एग्जाम्पल. क्वेश्चन 2, फाइंड द Laplace transform of g of t where this g of t is defined as t minus 1 cube where t is greater than or equal to 1. So t minus 1 cube when t is greater than or equal to 1, it takes value 0 when t is less than 1. ठीक है, so in solution here also if you compare this given g of t with our standard g of t, so that is by second shifting property. Okay, where our g of t is equal to it takes value 0 when t is less than a, it takes value f of t minus a when t is greater than or equal to a. In that case the Laplace transform of g of t is equal to e raised to minus as into f of s. So now if you compare this g of t with our given example, then you will get, or what this implies, your a must be 1. करेक्ट, कंपेयर करके आपको क्या समझ में आता है? a आपका 1 होगा एंड f ऑफ t माइनस a की वैल्यू क्या आएगी? f ऑफ t माइनस a की वैल्यू t माइनस 1 क्यूब, बट a इक्वल टू 1 है इसलिए मैं a की जगह पे यहाँ पे भी 1 कर देता हूँ. ठीक है, अभी आपको ये समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत. ओके, एंड नाउ सो इफ f ऑफ t माइनस 1 इज t माइनस 1 क्यूब, व्हाट दिस इम्प्लाइज, व्हाट इज योर f ऑफ t? तो f ऑफ t क्या आएगा? t माइनस 1 की जगह पे t रख दो, दैट बिकम t क्यूब. एंड नाउ कैलकुलेट द Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस f ऑफ t, दैट इज द Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ t क्यूब. Okay, so what is the Laplace transform of t cube? Anyone? ये बहुत लेंदी यूनिट है तो ये एंड तक रिजल्ट याद रखो. What is Laplace transform of t cube? Anyone? Yes? t raised to n का Laplace transform क्या है? Gamma of this power plus 1 that is 4 upon s raised to this power plus 1 that is 4. Okay, and what is gamma of 4? Gamma of 4 is 3 factorial divided by s raised to
4. So your answer is 6 upon s raised to 4. So this is the Laplace transform of f of t. But आपको क्या चाहिए था? आपको यहाँ पे चाहिए Laplace transform of g of t. So the Laplace transform of g of t is actually the e raised to minus as multiplied by this Laplace transform, which is 6 upon s raised to 4. हो गया, ठीक है. सो आई होप दिस प्रॉपर्टी इज क्लियर टू एवरीवन नाउ. सी फिर से एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या हुआ है. फर्स्ट लिनियरिटी प्रॉपर्टी, जिसमें आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म एडिशन वाइज सेपरेट कर सकते हो, कांस्टेंट को बाहर लेके आ सकते हो. सेकंड प्रॉपर्टी, जिसमें अगर फंक्शन को e raised to minus at से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको क्या करना है, आपको एफ ऑफ टी का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वहाँ पे s माइनस ए पुट कर देना है, वेयर a इज द कोएफिशिएंट ऑफ e raised to t, कोएफिशिएंट ऑफ t इन द एक्सपोनेंशियल टर्म. ओके. थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, जिसमें g ऑफ t आपका एक पर्टिकुलर फॉर्म में डिफाइन हो रहा है, विच इज नथिंग बट अ शिफ्टिंग ऑफ दैट फंक्शन, ओके, एट डिस्टेंस x इज इक्वल टू a. है ना, ये बस मैंने फंक्शन को शिफ्ट किया. दिस इज द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. ओके. सो एंड इन दैट केस योर लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज e raised to minus as into f of x. ओके. एंड नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. छोटे छोटे प्रॉपर्टी, छोटे छोटे रिजल्ट है. थर्ड हो गया, फोर्थ. ठीक है. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज multiplication by t. Okay, so fourth property is multiplication by t. Okay, so क्या प्रॉपर्टी है, if again the Laplace transform of f of t is equal to say capital F of s, correct. अगर आपके पास f of t का Laplace transform है, then the Laplace transform of, अगर आप उस फंक्शन को t से मल्टीप्लाई करते हो, नॉट पर्टिकुलरली t, यू कैन टेक t रेज टू n ऑल्सो, है ना. देन द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज टू n f ऑफ t इज इक्वल टू -1 रेज टू n dn अपॉन dsn, मीन्स द nth डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ s, वेयर f ऑफ s इज व्हाट, f ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म. ओके, लेट मी चेक अगेन, मैं भी बहुत दिनों के बाद ले रहा हूँ. ओके. सो -1 रेज टू n dn अपॉन dsn रेज इनटू f ऑफ s. ओके. तो ये आपकी प्रॉपर्टी है. मतलब अगर आप f ऑफ t को t से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या आंसर लिखना है, तो आंसर क्या आता है, -1 रेज टू n एंड जस्ट टेक द nth डेरिवेटिव ऑफ दिस लैप्लास ट्रांसफॉर्म. तो जो आपका f ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है उसका nth डेरिवेटिव आपको लेना है. ओके. सो आई विल एक्सप्लेन बाय वन सिंपल एग्जांपल. सो लेट मी टेक सम एग्जांपल्स ऑन दिस. क्वेश्चन 1, find the Laplace transform of t into cos of t at. Find the Laplace transform of t into cos of at. ये आपका क्वेश्चन है. ओके. सो इन सॉल्यूशन, हमेशा याद रखो कि आपको एग्जांपल्स, आप मतलब कि कौन से प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आ रहा है या आपको ही आइडेंटिफाई करना है. वहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं होगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी का क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ e raised to at का क्वेश्चन है, कि डिवीजन ऑफ टी का क्वेश्चन है. ये सारे प्रॉपर्टीज आपको आने वाले. ओके. और ज़्यादातर आपको इसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आते हैं. नाउ हियर यू कैन सी दिस फंक्शन इज मल्टीप्लाई बाय t. जैसे e raised to at की एक केस थी, वैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ t की एक केस है. सो इन दैट केस आपको करना क्या है, इन दैट केस जस्ट कैलकुलेट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अदर फंक्शन. मतलब f ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करो, देन योर फाइनल आंसर इज -1 रेज टू n, द nth डेरिवेटिव ऑफ दिस f ऑफ s. ओके. सो हियर फर्स्ट वी कैलकुलेट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ऑफ at, बट ये आपका स्टैंडर्ड फंक्शन है. ओके. इसलिए आपके पास वो डायरेक्ट, इसलिए आपके पास उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट आने वाला है. तो cos ऑफ at का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, cos फंक्शन में s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. करेक्ट करो अगर कहीं पे रॉन्ग लग रहा है. ओके. सो द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकंड फंक्शन इज दिस. नाउ बाय प्रॉपर्टी ऑफ multiplication by t, okay, what this property tells you, that the Laplace transform of t raised to n into f of t is equal to -1 raised to n dn upon dsn of f of s. ये आपकी प्रॉपर्टी है. ओके. सो पुट ऑल दिस वैल्यूज. सो therefore आपके केस में क्या है, therefore द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, आपको चाहिए यहाँ पे t इंटू कॉस ऑफ at का लैप्लास ट्रांसफॉर्म. सो विच इज इक्वल टू -1 रेज टू, यहाँ पे t की पावर क्या है 1, मतलब n इक्वल टू क्या है इस केस में, n इक्वल टू 1 आ रहा है ना.
So minus 1 raised to 1 means 1 d upon ds, because the first derivative of f of s. But what is your f of s? So which is equal to minus 1 d by ds of दिस फंक्शन f ऑफ एस आपका क्या था जो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है. f ऑफ एस मतलब सेकंड का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो cos ऑफ एटी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये था. सो दिस इज योर f ऑफ एस विच इज s अपॉन a स्क्वायर प्लस s स्क्वायर. सो s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. नाउ जस्ट टेक द डेरिवेटिव, दैट विल बी द फाइनल आंसर. सो डेरिवेटिव के लिए यहाँ पे u अपॉन v का रूल यूज करना होगा. सो दिस माइनस साइन एज इट इज, एंड डेरिवेटिव क्या आता है v स्क्वायर मीन्स a square upon a square whole square, v square in numerator write v first into derivative of numerator which is 1 minus write numerator into derivative of denominator which is 2s. ठीक है, and just do the simplification. So you will get yes. Any problem in the lecture? Okay. Is there any problem in the lecture? Reply me quickly. No sir. No ना. किसी स्टूडेंट का कॉल आ रहा है, ठीक है. ओके, सो विच इज इक्वल टू माइनस एज इट इज. And now this can be written as s square plus a square, and this become minus 2s square upon s square plus a square whole square. So the final answer is so equal to minus as it is. If you want, you can adjust this minus here also, and you will get a square minus s square upon s square plus a square whole square. And if I adjust this minus, so finally we will get a square minus a square upon s square plus a square whole square. ठीक है, okay. So this is the property of multiplication by t. We'll take one more example, तभी ये clear होगा, इतनी जल्दी नहीं समझ में आएगा. So question number 2. Find the Laplace transform of t into sin cube t. Okay, find the Laplace transform of t into sin cube t. तो यहाँ पे भी आप देखो t से मल्टीप्लाई हो रहा है. सो हियर फर्स्ट वी हैव टू यूज द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय t. तो उसमें पहले आपको करना क्या है, जो आपका ऑर्डर फंक्शन है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करो. मीन्स व्हाट, इन सॉल्यूशन first of all we need to calculate the Laplace transform of the second function, that is the Laplace transform of sin cube t. बट अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ओके, वी डोंट हैव एनी स्टैंडर्ड रिजल्ट फॉर साइन क्यूब टी. साइन क्यूब टी के लिए आपके पास कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है, तो आपको पहले क्या करना होगा, साइन क्यूब टी को रिप्लेस करना होगा बाय द फॉर्मूला ऑफ साइन ऑफ 3 थीटा, ओके, विच इज देयर इन द प्रीलिमिनरीज. तो साइन क्यूब टी का फॉर्मूला क्या है, 1/4 3 साइन टी माइनस साइन 3t. सो इट बिकम Laplace transform of 1/4, okay, 3 sin t minus sin 3t. Okay, so this is the simplification of sin cube t. Again, this 1/4 is constant, you can take outside, and so you can separate this integral also. Okay, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ. So I think you will get here 3/4 the Laplace transform of sin t minus 1/4 the Laplace transform of sin 3t. Okay, which is equal to 3/4. What is Laplace transform of sin t? Anyone? Laplace transform of sin t क्या आने वाला है? It is a standard result. A upon s square plus a square, but here a is 1 है ना, t का कोएफिशिएंट 1 है, so 1 upon a square plus a square which is 1 and minus 1/4. यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 3, so a upon s square plus a square means 9. Okay, and now and now you can write, so by property of multiplication by t, okay,
What is our result? The Laplace transform of t raised to n f of t is equal to minus 1 raised to n nth derivative of that is ds upon dn upon dsn of f of s. तो ये जो भी आपने कैलकुलेट किया ये आपका एफ ऑफ एस है, ठीक है. सो बट यहाँ पे टी से ही मल्टीप्लाई हो रहा है ना, टी से मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब n इक्वल टू 1 है. सो इन दिस केस Laplace transform of t multiplied by sin cube t equal to minus 1 as n is 1 d upon ds of this whole part जो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है. So which is 3/4 into 1 upon s square plus 1 minus 3/4 into 1 upon s square plus 9. Bracket complete. Now just take the derivative and that will be the final answer. So equal to this minus 1 as it is, okay, 3/4 as it is. What is derivative of 1 upon s square plus 1? Can anyone tell me quickly? 1 upon s square plus 1 का डेरिवेटिव क्या आता है? तो आपको चेन रूल यूज करना है. 1 upon x का डेरिवेटिव क्या है? 1 upon x का डेरिवेटिव बोलो बोलो, पता होगा, सबको ही पता है. एनीवन? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. तो यही रिजल्ट आपको यहाँ पे यूज करना है डायरेक्टली, है ना. तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आने वाला है? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दैट इज एस स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर. बट चेन रूल क्या होता है कि जो ब्रैकेट का टर्म है मतलब एस स्क्वायर प्लस 1 का जो पार्ट है उसका डेरिवेटिव से आपको मल्टीप्लाई करना है एंड मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट टर्म विच इज 2s. सो फाइनली विल गेट माइनस 2s अपॉन दिस, है ना. सिमिलरली दिस माइनस 3/4 एंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस क्या आएगा? पहले तो आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दैट इज एस स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट टर्म विच इज जस्ट 2s. हो गया. जितना हो रहा उतना करो सिंप्लीफिकेशन एंड यू कैन कीप दैट पार्ट एज इट इज. सो माइनस 1 इन ब्रैकेट, अभी ये 2 आ रहा है सो इट बिकम 3/2 और ये माइनस s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर. सो इट इज माइनस माइनस प्लस 3/2 s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर. तो क्या क्या कॉमन आ रहा है? माइनस अंदर ले सकते हो. तो फाइनली यू विल गेट 3s/2 इन ब्रैकेट, क्योंकि 3 भी कॉमन आ रहा है, s भी कॉमन आ रहा है. इन ब्रैकेट यू विल गेट माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करता हो तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर. ठीक है. अब देखो अगर कहीं पे सिंप्लीफिकेशन भी मिस्टेक हो रही है देन यू कैन चेक अगेन. ठीक है. बट ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितना उसको आगे सिंप्लीफाई करना है. ठीक है. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन बाय टी. ओके. तो आज के लेक्चर में क्या क्या हमने कंप्लीट किया है? लिनियरिटी प्रॉपर्टी. नेक्स्ट e⁻⁸ से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है? फिर शिफ्टिंग मतलब जियो ऑफ टी जो डिफाइन हो रहा था उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं. नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन बाय टी. ठीक है. अभी लास्ट में मैं क्या करता हूँ, आई विल गिव यू द रैंडम क्वेश्चंस ऑन दिस 2-3 प्रॉपर्टीज और आपको मुझे स्टेप्स एक्सप्लेन करने कि कैसे वो सॉल्व होगा. यस, लेट मी आइडेंटिफाई वन क्वेश्चन. इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जितना लोगे उतना कम है. ओके. सो क्वेश्चन नंबर आई डोंट नो, मे बी इट इज 4th question or 3rd question. Find the Laplace transform of t e⁻²t sin 2t. ये आपको कैलकुलेट करना है, मतलब t e⁻²t sin t एंड t. ओके. ये आपको कैलकुलेट करना है. बोलो कैसे? यस. शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और t⁻n दोनों प्रॉपर्टीज यूज करनी. हाँ, तो पहले कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है आप बोलो, मैं आपके हिसाब से जाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे सारा कैलकुलेशन करना है.
आप बोलो पहले कौन सा यूज करना है। सो इन सोल्यूशन ओके, मैं पहले इसको होल्ड पे रखता हूँ e raised to minus 2t पे। ओके, वाई आई केप्ट दिस ऑन होल्ड, आई डोंट नो कि आगे क्या होगा, बट लेट पहले इसको होल्ड पे रखते हैं क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता। e raised to minus 2t में क्या होता है बेसिकली, आपको बस s को रिप्लेस करना पड़ता है बाय s माइनस ए, बट यहाँ पे वो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो आपको एट द एंड s को रिप्लेस करना है बाय s प्लस 2, है ना। सो दिस कैन बी रिटर्न एज the Laplace transform of e raised to minus 2t. Now I club this t into sin 2t. आप ये रूल चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो t को बाहर लेके आ जाओ, बट मुझे जो सिंपल लग रहा है कि मुझे पता है कि एक्सपोनेंशियल e raised to minus 80 का रिजल्ट सिंपल है। अगर सेकंड फंक्शन का लैप्लास आ जाता है तो बस मुझे s को रिप्लेस करना बाय s प्लस 2, हो गया मेरा काम, तो कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है, ठीक है। बट t में मुझे वो डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा, तो इसलिए पहले मैं वो t का अप्लाई कर देता हूँ और बाद में फिर एक्सपोनेंशियल का अप्लाई करता हूँ। तो मेरी जो प्रायोरिटी है वो क्या है, मैं पहले t का सॉल्व करने वाला हूँ और फिर एक्सपोनेंशियल का सॉल्व करने वाला हूँ। लॉजिक आपको समझ में आ चुका है। ओके, सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ e raised to 80 f of t? प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है, द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to 80 f of t। मैंने आते समय आपको एक्सप्लेन किया था। इसमें बेसिकली करना क्या है, f of s मतलब s दिस इज एक्चुअली f of s माइनस ए, इट मीन्स व्हाट, f of t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करो एंड इन दैट जस्ट रिप्लेस s बाय s माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आपको इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सो let us first calculate the Laplace transform of t into sin 2t। ओके, अब इसमें भी क्या करना पड़ेगा आपको, ओके, इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, यस। सो टू फाइंड Laplace transform of t into sin 2t, इसमें भी आपको पहले क्या करना होगा, सेकंड फंक्शन का Laplace कैलकुलेट करना होगा। ओके, कंसीडर the Laplace transform of sin 2t। ओके, अगर आपको ये फ्लो समझ में आ चुका है ना, तो आप डायरेक्टली भी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ओके, एट द एंड आपको ये पहले सॉल्व करना ही होगा, तब जाके मल्टीप्लिकेशन ऑफ t यूज होगा, तब जाके मल्टीप्लिकेशन ऑफ e raised to minus 2t यूज होगा। तो एट द एंड आपको sin 2t का पहले कैलकुलेट ही करना होगा। ओके, सो sin 2t का लाप्लास क्या आता है, a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है ना। नाउ व्हाट, हाँ, मल्टीप्लिकेशन बाय t, इसका रिजल्ट क्या है, मैं पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, इसलिए हमेशा लिखता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। t raised to n f of t, क्या रिजल्ट है, -1 raised to n dn अपॉन dsn इंटू f of s। तो ये हो गया आपका इस केस में f of s। तो आपका आंसर क्या आएगा, सो द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू साइन 2t इज इक्वल टू -1 d by ds of f of s। okay, not multiply, so of f of s means what, 2 upon s square plus a square, 2 upon s square plus a square। now let's calculate this first। so ये minus as it is, हाँ, ये 2 भी constant है, you can take outside to this, and 1 upon x, 1 up, अरे हाँ हाँ, करेक्ट। Okay, now it is correct। so 2 multiply by, now what is derivative of 1 upon x, 1 upon x का डेरिवेटिव क्या है, -1 upon x square, that is s square plus 4 whole square and multiplied by derivative of bracket term, तो s square plus 4 का डेरिवेटिव क्या है, 2s, है ना। so क्या मिलेगा आपको फाइनली यहाँ पे, so माइनस प्लस दिस बिकम 4s, चेक करो अगर कहीं पे मिस्टेक है तो कैलकुलेशन आप एक बार चेक करते जाओ। so 4s अपॉन s square plus 4 whole square। so this is the value for Laplace transform of t into sin of 2t। now you can find the Laplace transform of e raised to minus 2t, okay, multiply by this second function। okay, now consider this। okay, so now the Laplace transform of e raised to minus 2t multiply by the second function t into sin 2t is equal to, करना क्या आपको, बस यहाँ पे just replace s by s plus 2 because here this a is -2। so finally we'll get 4
into s plus 2 okay divided by s plus 2 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, हो गया। ये ज़्यादा कुछ सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं। इफ यू वांट यू कैन कीप दिस पार्ट एज इट इज। जितना हो रहा है उतना करो, करना है तो आप ये बस s plus 2 होल स्क्वायर सिंप्लीफाई करो, या नहीं भी करते तो भी करेक्ट ही है। ओके, सो आई होप माई कैलकुलेशन इज करेक्ट। अगर कहीं पे मिस्टेक हो रही तो आप मुझे बोलते जाओ। ओके ओके, एनी डाउट इन दिस पार्ट? समझ में आ रहा है? ऐसे कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं, सिंगल आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी, सिंगल आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ ई टी, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आने वाले। एनी डाउट इन दिस पार्ट? बोलो जल्दी। There are many questions on this. Yes? कुछ डाउट्स है क्योंकि मैं भी ये पार्ट आपको अभी इमीडिएटली यूनिट टेस्ट में भी आने वाला है, तो इसलिए ओके। एनी डाउट फ्रॉम योर साइड? इतना तो समझ में आ गया आपको? ये लेंथी यूनिट है, ओके, इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है हमारा।